Namaskar and good morning to each one of you. Today's topic is on 10 yogic ways counter exam stress. So as usual, we have a technical paper on the subject, which I will read out for you. And once the paper is complete, we will do a short 10 to 15 minutes of meditation. And after the meditation, we will have a question answer session where you are free to ask questions connecting to yoga and the stress in students, particularly due to examinations. Yeah, so dear friends, namaskar. Let's look at the introduction first. We all know that exams are a time of great stress for students. By following yogic wisdom, it is possible to greatly reduce their stress. Patanjali Yoga Sutras is a storehouse of ancient psychological knowledge to counter pain, sorrow, and stress. Let us apply its principles to overcome stress for students. The first 5 ways have to be followed by parents, and the last 5 ways have to be followed by the students themselves. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है, हमें जानते हैं कि जो एग्जाम्स हैं वो बहुत स्ट्रेस पैदा करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन योग की विद्या से, योग के ज्ञान से हम उनका ये स्ट्रेस बहुत हद तक हटा सकते हैं। और पतंजलि के योग सूत्र जो है वो बहुत ही एंशिएंट नॉलेज है, साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जिससे कि हम कोई भी दुख, कोई भी पेन, कोई भी स्ट्रेस को काउंटर कर सकते हैं और उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम बच्चों के स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। तो जो पहले 5 तरीके इसमें बताए गए हैं वो माता पिता को फॉलो करने हैं, और जो बाद के 5 तरीके बताए गए हैं वो बच्चों के लिए। फॉर पेरेंट्स, the 5 ways in which parents can keep the minds of the students at rest and relaxed are as follows. 1. Soch. 2. Santosha. 3. Tapasya. 4. Swadhyay. And 5th is Ishvara Pranidhana. तो माता पिता को जिन 5 चीजों का पालन करना है वो है शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आइए इन सबको हम लोग देखते हैं। शौच। शौच means cleanliness. It means cleanliness of both the mind and the body. During exam time, parents must take extraordinary care to keep the home and its environment neat and clean. No loud music must be played. No guests must be invited. The bedrooms, bathrooms, and other floor area must be properly mopped with a disinfectant or salted water. The bath also must be taken by putting some salt in the bath water. New and fresh clothes must be worn. The thoughts, words, and deeds of all family members must be positive and encouraging. Windows must be kept open so fresh air and sunlight can come in. तो शौच मतलब सफाई, क्लेanलीनेस, और ये क्लेanलीनेस, ये सफाई हमको मन की और शरीर की दोनों की रखनी है। एग्जाम टाइम में माता पिता को, पेरेंट्स को ये खास ध्यान देना है कि घर साफ सुथरा रहे, आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे, जोर से म्यूजिक घर में नहीं बजे, गेस्ट को हम इनवाइट नहीं करें, बेडरूम, बाथरूम और जितने भी फ्लोर एरिया घर के हैं वो प्रॉपरली मॉप हो, उस पर पोछा लगे और कोई डिसइंफेक्टेंट या सॉल्टेड वाटर के साथ वो हम करें। और इसके अलावा नहाते समय भी पानी में थोड़ा नमक डालने से नेगेटिव एनर्जी शरीर से निकल जाती है, और नए कपड़े पहनने चाहिए, फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए, और शब्द, विचार और जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सब पॉजिटिव और एनकरेजिंग होना चाहिए सारे फैमिली मेंबर्स के। इससे घर में एक पॉजिटिव वातावरण आ जाता है। खिड़कियां खुली रखिए, फ्रेश हवा अंदर आने दीजिए, सूरज को आने दीजिए, उससे भी एक फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है।
Santosh. Santosh means contentment. The parents must not push the child with their expectations. They must not do anything which puts an undue pressure on the child to perform in the exams. The parents must be contented with whatever marks the child gets in the exam and must tell the same to the child much before the start of the exams. A mind which is free from stress and tension is a relaxed mind. Such a mind can perform well as it is performing out of peace. Contentment is a big virtue in life. Contentment is a big virtue in life, and parents must first practice it. The child will pick up the virtue of contentment from the parents and will eventually lead a contented life. तो कंटेंटमेंट मतलब संतोष. संतोष एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी जीवन का, और बच्चों को अपने माता पिता से ही सीख मिलती है. अगर पेरेंट्स बच्चों को एग्जाम रिजल्ट्स के लिए पुश नहीं करते हैं, प्रेशराइज नहीं करते हैं, तो बच्चों का जो मन है वो रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, और एक शांत मन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और ये बहुत जरूरी है. दूसरा, कंटेनमेंट एक ऐसा बड़ा गुण है, ऐसा बड़ा क्वालिटी है कि बच्चा अपने माँ बाप से जब सीख लेता है तो वो जीवन भर उसका साथ देता है, और जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको वो इजीली कंफर्टेबली फेस कर लेता है. तपस्या. तपस्या मीन्स पुटिंग द बॉडी एंड माइंड टू रिगरस डिसिप्लिन. This will put control on the sense organs and drive the mind inwards. A child learns from parents through imitation. The parent easily becomes a role model for the child. When a child sees a disciplined behavior and control displayed by the parents, he also starts a similar behavior. Now he approaches his exams and studies in a disciplined manner, pushing the body and mind to perform better of his own volition. तो जब हम देखते हैं कि माता पिता अपने शरीर को तपस में डालते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, उसको हीट अप करते हैं, बॉडी को, माइंड को, और एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा ये सीखता है. और ये करने से हमारे इंद्रियों पे हमारा काबू आता है, हमारा मन जो है वो अंदर की दिशा में जाना चालू करता है. और सबसे लाइफ की बड़ी अचीवमेंट्स उनके पास होती है जिनका मन अंदर जाने लगता है, जिनका थॉट अंदर जाने लगता है. तो चाइल्ड ये सब सीखता है अपने माता पिता से, और आगे चल के इस डिसिप्लिन बिहेवियर को देख के, इस कंट्रोल को देख के वो अपने पढ़ाई में लगाता है. वो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकता है, टाइम डिवोट कर सकता है, और उसी के अनुसार उसके एग्जाम्स में, उसके लाइफ में रिजल्ट आने लगते हैं. स्व अध्याय. स्व अध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी. Parents today are easily 20 to 25 years elder than the child. Our scriptures suggest Swadhyay for all of us. So when a child sees in his house his parents putting in time for self-study, it seems normal routine behavior to him. If he even sees his grandfather and grandmother, who are about 50 years senior to him, studying, he may take to books like a fish to water. He is fond now of education himself. Learning becomes a lifelong process for him. Then there is no fear of examinations because he has gone through that process. He is part of that process. तो स्वाध्याय मतलब खुद से अध्याय करना, खुद से स्टडी करना. माता पिता आज के युग में आराम से 20-25 साल अपने बच्चों से बड़े होते हैं, और अगर बच्चे देखते हैं कि माता पिता स्टडीज कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बेटर करने में कुछ एफर्ट, कुछ टाइम, कुछ मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चा उसको पिकअप कर लेता है. और अगर घर में दादा दादी भी हैं और वो भी उनसे कम से कम 50 साल बड़े होते हैं, वो जब देखता है कि उस एज में भी दादा
कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस पे अध्ययन कर रहे हैं, दादी कुछ ग्रंथ पढ़ रही है, उस पे अध्ययन कर रही है, तो बच्चों के मन में ये डीप डाउन बैठ जाता है कि यही नॉर्मल बिहेवियर है, और वैसा ही वो बिहेव करने लगता है। उसको किताबों से प्रेम हो जाता है, एजुकेशन उसके जीवन का एक अटूट अभिन्न हिस्सा बन जाता है, और फिर उसके लिए एग्जाम्स और जीवन में लर्निंग एक कांस्टेंट इजी प्रोसेस बन जाता है। ईश्वर प्राणिधाना. Ishvara Pranidhana means surrender to Ishvara. When the parents surrender to Ishvara, and in such a way that the child can clearly see it, it helps in a big way. But if the habit of Ishvara Pranidhana is inculcated in the child in a young age, in any form or in any manner, then it helps phenomenally. The child develops trust in God, which helps him move ahead with his exams confidently. And also by spending some time with God. आपका ऑडियो थोड़ा लो है। और सबको ऑडियो लो लग रहा है क्या? नहीं जी, एकदम परफेक्ट है। नहीं, ठीक है, एकदम से हो गया। मैं तो सुनते सुनते नो स्टार्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है। Okay, so by spending some time with God, he is able to de-stress completely. So, आइए देखते हैं ईश्वर प्रणिधाना क्या है। ईश्वर हम जानते हैं, प्रणिधाना मतलब एक कमिटमेंट, और कंप्लीट कमिटमेंट मतलब पूर्ण समर्पण। तो जब एक बच्चा अपने माता पिता को ईश्वर के प्रति कंप्लीट सरेंडर करते हुए देखेगा, तो वो उसके जीवन में उसको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स बच्चे में ये आदत डालते हैं कि वो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कुछ भी समय के लिए एक दिन में ईश्वर के साथ समय बिताए, तो वो बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। उसको ईश्वर पे ट्रस्ट हो जाता है, और जो कि उसको अपने एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली मूव करने के लिए हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ईश्वर के साथ जब समय बिताना सीख जाता है, तो वो उसका टाइम हो जाता है जहां पर कि वो अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रेस कर सकता है और अपने लाइफ को रीओरिएंट कर सकता है विद कंप्लीट पॉजिटिविटी। माता पिता चले जाएंगे, लेकिन ये ट्रस्ट जो रह जाता है बच्चे में, ये उसको जीवन भर काम आता है, और वो ये अपने आने वाले जनरेशंस को पास डाउन कर सकता है। Okay, so now for students, there are 5 simple ways by which a student can divert his mind to a relaxed state, which helps him to cope up well with exam stress. So how can a student do it? 1. Om chanting. 2. Sunrise. 3. Breathing. 4. Aspiration. 5. Sense object. Let us now look at these 5 ways in some detail, so that we can easily learn the method and the science behind it to quieten and relax the mind. बच्चे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 5 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? पहला है ओम के मंत्र का जाप, दूसरा है सूर्योदय को देखना, तीसरा है अपने सांसों पे नजर रखना, चौथा है कि जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनके एम्बिशन है, उस पे फोकस करना, और पांचवा है कोई भी उन वस्तु जो कि उनके इंद्रियों को भाती हो, उस पे ध्यान लगाना, उस पे मन को चिपका देना। तो हम लोग इन पांचों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओम चैंटिंग. Om chanting is an ancient method which is more than 5,000 years old, or maybe even more. And it brings the mind to peace by bringing it to one place. It quietens it. It also raises the consciousness level of the chanter. With chanting, the breathing pattern is such that there are vibrations in the top crown of the head. These vibrations activate the pineal gland,
in the center of the crown of the head. An activated pineal gland starts transmitting to and receiving from higher consciousnesses present in existence. This leads to a higher feeling of calm, lightness, and a pleasant feeling in the chanter. अगर हम ओम का जाप करते हैं तो ये ओम का जाप करने का जो तरीका है ये बहुत प्राचीन तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि 5000 साल से भी पुराना तरीका है। इससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन के अंदर में हम शांति ला सकते हैं और हमारी चेतना का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। और चैंटिंग करने से जो हमारा ब्रीदिंग होती है, जो जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे सिर के ऊपर जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, वाइब्रेशन आने लगते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन आते हैं सिर में ऊपर में, जहां पर कुछ लोग कहते हैं सहस्रार चक्र का लोकेशन होता है, उस पॉइंट पे आपको एहसास होगा कि आपके अंदर का जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव हो रहा है। और जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तो उसका रिसेप्शन और ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। वो हायर कॉन्शियसनेस से, जो कि प्रकृति में है, जो कि एग्जिस्टेंस में है, ब्रह्मांड से है, उनसे कम्युनिकेशन चालू कर देते हैं, उनके सिग्नल रिसीव करते हैं, उनको सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। और इस कारण से एक हायर फीलिंग ऑफ कामनेस आ जाती है, मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, हल्का लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। सनराइज Sunrise, if watched regularly early in the morning, when the sun has just started its journey on the horizon, helps in bringing the mind to peace and happiness. There is a feeling of connectedness which is divine. It also makes a person feel fresh and energetic. It leads to an increase in concentration power, which eventually raises the intellect of an individual. सूर्योदय देखने से ये पाया जाता है कि मन जो है शांत होता है, मन आनंद में आता है, एक सेंस ऑफ दिव्य कनेक्शन का एहसास होता है कि हम किसी ईश्वरीय ताकत के साथ जुड़ने लगते हैं और वो इंसान को फ्रेश फील होता है, पूरी बॉडी में एनर्जी का एहसास होता है, उसके कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है और उसकी बुद्धि का लेवल बढ़ने लगता है। Breathing exercises are good ways to bring the mind to rest. They can be learned with practice. They are well known as pranayama. Prana can be loosely translated as breath, and yama means control. The body, breath, and mind are interconnected. The state of the mind controls the breathing rate and vice versa. If we regulate the breathing pattern, we are able to regulate the mind. The breath in turn controls the body. The rate of breathing decides the amount of oxygen being fed to the body. And the body too, when in motion, gives a higher breathing rate. वो सांसें जो हम लेते हैं, सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना, ये एक नेचुरल तरीका है शरीर का, जिससे कि हम अपने मन को रेस्ट पे ला सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस से सीखा जाता है इसको, और इसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणा यहाँ पे हो गया लाइफ फोर्स, और कुछ लोग इसको लूजली ट्रांसलेट करके बोलते हैं ब्रेथ, और यमा मीन्स कंट्रोल, रेगुलेट करना। तो हमने ये देखा है कि शरीर, प्राण और मन, ये तीन आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी मानसिक स्थिति रहेगी उसी प्रकार की हमारी ब्रीदिंग होगी, और जैसे हमारी ब्रीदिंग होगी उसी प्रकार से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पंपिंग होगा, और जिस स्पीड से हमारी बॉडी एक्शन कर रही होगी उसी स्पीड से हमारी ब्रीदिंग होगी, और जिस स्पीड से हमारी ब्रीदिंग होगी उसी स्पीड से हमारा माइंड एक्टिव होगा। तो ये तीनों कनेक्टेड है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। Aspiration is what a child will have and will love his aspiration.
He can put his mind on what he is aspiring for and hold it for some time. Then his mind will become relaxed. He will not be aware about the passage of time. Another benefit of this exercise is that the more he thinks about his aspiration, the more sanskaras he creates in his chitta. This leads to more powerful manifestation of his desires through karma. Aspiration मतलब अंदर की गहरी इच्छा, कुछ एम्बिशन, बच्चा कुछ बनना चाहता है जीवन में, तो उसके ऊपर जब वो सोचता है, विचार करता है, तो उसको वो चीज अच्छी लगती है. जब वो सोचता है, विचार करता है, तो उसका माइंड रिलैक्स होने लगता है, उसका स्ट्रेस निकलने लगता है, उसको समय का एहसास नहीं होता है. और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि वो उस पर चिंतन मनन कर रहा है, उसका मन रिलैक्स हो रहा है, तो चिंतन मनन करने से उसके चित्त के अंदर उस चीज की संस्कार जो है वो गहरे होने लगते हैं, उसके वासनाएं पैदा होने लगती हैं. और क्योंकि वो संस्कार गहरे होने लगते हैं, वासनाएं पैदा होने लगती हैं, तो उसके अनुसार आगे संकल्प और कर्म भी होने लगते हैं. वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उसके जीवन में आसानी से जल्दी आ जाता है. तो ये भी एक बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम तरीका है. सेंस ऑब्जेक्ट. Sense object is an object in the outer world to which a child can be attached. It can be his mobile phone, his musical instrument, or anything else. When a child in time of stress thinks about his sense object for a period of time, it gives him joy and relaxes the mind. He feels himself de-stressed and ready to take on studies with a new enthusiasm. Sense object मतलब इंद्रियों से जुड़ी हुई वस्तु. तो ये इंद्रियों से जुड़ी हुई वस्तुएं कहाँ होती हैं? बाहर दुनिया में है. और बच्चे किसी न किसी वस्तु से विशेष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं. वो उनका मोबाइल फोन हो सकता है, उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. तो जब वो उसके बारे में सोचता है तो उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि उसके साथ उसके इंद्रियों में अच्छे प्लेजरेबल फीलिंग स्टोर्ड है, उसके चित्त में प्लेजरेबल फीलिंग स्टोर्ड है. तो वो रिलैक्स होने लगता है, वो कामनेस में आ जाता है, और वो अपने आप को डी स्ट्रेस पाता है, और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई एक नए एंथुसियाज्म के साथ, फ्रेश माइंड के साथ कर सकता है. ये जो मेथड्स हैं, इसके बारे में और जानते हैं डिटेल में वापस. Any of these 5 methods need to be practiced for at least 15 to 20 minutes daily. This brings a disoriented mind into a particular orientation. It brings the mind to one place. By bringing the mind to one place, we reduce the thoughts in the mind. Reduction of thoughts is the process of yoga. It leads to a relaxed mind with higher capabilities. Patanjali, in his second sutra, defines the philosophy of yoga as nothing but the control of thoughts. If we keep this philosophy alone in mind and apply it to all places, wherever we feel stress, we will find immediately our mind becoming silent and peaceful. A silent and a peaceful mind automatically becomes more efficient, intelligent, knowledgeable and powerful. तो ये जो 5 तरीके हैं, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये रेगुलरली आपको बेनिफिट देना चालू करेगा. और ये किसी भी एक डिसओरिएंटेड माइंड को, एक मन जो कि एकाग्र नहीं है, सब जगह फैला हुआ है, उसको वो एकाग्र कर लेता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देता है, ओरिएंटेशन दे देता है, मन को एक जगह ले आता है. और मन को एक जगह लाने से विचार कम हो जाते हैं, विचार कम होने से ही योग होने लगता है, और योग होने से ही मन रिलैक्स हो जाता है और हायर कैपेबिलिटीज जागने लग जाती हैं. पतंजलि अपने दूसरे सूत्र में पहले समाधि पाद में कहते हैं कि योगा की फिलॉसफी और कुछ नहीं है, बस अपने चित्त के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना है. और इसी फिलॉसफी को, इसी बात को अगर हम समझ जाते हैं, तो किसी भी जगह जहां पर भी हमको स्ट्रेस होता है, अगर हम अपने माइंड को एक जगह
लाना चालू करते हैं तो हमारा माइंड साइलेंट हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, माइंड पीसफुल हो जाता है। और एक साइलेंट और पीसफुल माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, ज्यादा ज्ञानवर्ती हो जाता है और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। Conclusion: by following the simple 10 ways mentioned above, any student can give his exams to the best of his ability and score the highest marks possible, as the mind is now free, relaxed and operating from a higher level of mind. या तो उसको कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि ये ऊपर के जो 10 हमने तरीके देखे, इसको अगर कोई भी स्टूडेंट और पेरेंट मिलके फॉलो करते हैं तो वो देखेंगे कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड एग्जाम्स को अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ दे सकता है, हाईएस्ट संभव मार्क स्कोर कर सकता है, क्योंकि उसका मन अभी फ्री हो गया है, उसका मन अभी रिलैक्स हो गया है, आराम में है और वो एक हायर लेवल से काम करने लगता है, उसके ब्रेन के हायर लेवल से ऑपरेशन चालू हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आने लगते हैं। Yeah, so that's it and thank you so much.